تو گندم اگر نہیں ہوگی تو ملک تو بھوکا مر جائے گا. زراعت جو ہے, ایک منٹ ٹھہرے, آپ نے بڑی تسلی سے بات کی ہے, مجھے ذرا کرنے دیں. تو دوسری بات یہ ہے نا, السلام علیکم, کیا حال چال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی, شکر ہے پاکستان. اچھا جی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ملکی معیشت کو اسٹرانگ کرنے میں انڈسٹری زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے یا زراعت کا محکمہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اس کے اوپر شاہ جی پہلے آپ بول لیں, پھر احمد بھائی کے جو ہیں وہ ویوز اس پہ دیکھ لیں گے. دیکھیں جی, آپ نے یہ آج جو ایشو اٹھایا یا ٹاپک دیا, یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. پاکستان بنیادی طور پر ایک ترقی پذیر ملک ہے اور زرعی ملک ہے. اوکے. تو پاکستان کی جو 70% آبادی ہے نا, وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی زراعت کو مطلب اہمیت دینی چاہیے. اگر زراعت ترقی کرے گی تو یہ ملک ترقی کرے گا, کیونکہ زراعت ہمارے ملک میں نا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس لیے زراعت کی نا بہت ضروری ہے. چونکہ میں یہ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جو زراعت ہے نا, ایک تو اس کا مطلب 70% آبادی اس کے ساتھ منسلک ہے. دوسرا نا بھائی گندم ہے, تو یہ ہر غریب امیر کھاتا ہے, یعنی غلہ ہے, ہر بندے کی ضرورت ہے, غریب کی بھی ضرورت ہے, امیر کی بھی ضرورت ہے. تو چاول ہے, گنا ہے, کپاس ہے, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ لائف سٹاک بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی لائف سٹاک اور زراعت مطلب ایک ہی چیز ہے. مطلب تو اگر آپ کے ہاں لائف سٹاک نہیں ہوگا تو دودھ کہاں سے ہم پورا کریں گے اپنی ضروریات, گوشت کہاں سے پورا کریں گے. انڈسٹری جو ہے, انڈسٹری کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے زراعت کے ساتھ. مثلا اگر آپ ہمارے پاس کپاس نہیں ہے تو آپ یہ ٹیکسٹائل ملیں کیسے چلائیں گے. ہمارے پاس اگر گنا نہیں ہے تو آپ شوگر ملیں کیسے چلائیں گے. یعنی انڈسٹری بھی تب آپ کی پھیلتی پھولتی ہے جب آپ کی زراعت ترقی کرے گی. تو اس لیے انڈسٹری کے لیے بھی زراعت ضروری ہے. تو زراعت ترقی کرے گی تو آپ کی انڈسٹری بھی ترقی کرے گی, ملک بھی ترقی کرے گا. اور 70% آبادی بھی زراعت سے منسلک ہے. جب زراعت ترقی کرے گی تو یعنی 70% آپ کا ملک کی آبادی ترقی کرے گی. اوکے احمد بھائی. اچھا, سلسلہ کچھ یوں ہے کہ سوال آپ کا یہ تھا کہ ملک کی ترقی میں زیادہ زراعت کا اہم رول ہے یا پھر انڈسٹری کا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو فنشڈ گڈس کی اہمیت ہے نا, وہ بہت زیادہ ہے. اوکے. فنشڈ گڈس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کپاس کی اہمیت زیادہ ہے یا پھر جو آپ نے انہوں نے سویٹر پہنا ہے اس کی زیادہ ہے. اوکے. کپاس ایک را مٹیریل ہے, اس کو جب آپ مختلف پروسیسز سے گزارتے ہیں تو فنش گڈ بنتا ہے. اب ان پروسیس سے گزارنے کے لیے آپ کو ایک فیکٹری انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو 10 ایکڑ میں اگر آپ کپاس کر رہے ہیں یا 10 ایکڑ میں گندم کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہارڈلی آپ کو 1 یا 2 بندے چاہیے ہوں گے جو کہ یہ سارا کچھ مینیج کر سکتے ہیں, پانی لگانا ہے, جو بھی ان کے طریقہ کار ہے کسان بھائیوں کا. لیکن اگر آپ اس کو جب فنش پروڈکٹ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کپاس سے کپڑے بنانے کے آپ کو ٹیکسٹائل مل لگانی پڑے گی. اب ٹیکسٹائل مل 2 کام کر رہی ہے. مثال دیا ٹیکسٹائل مل کی, آپ فوڈ انڈسٹری کی کوئی لے لیں, ٹیکسٹائل لے لیں, آپ پیپر اینڈ پلپ کی لے لیں, آپ فوڈ اینڈ بیوریجز کی لے لیں, ٹھیک ہے, آپ ایروناٹیکل جو مرضی لے لیں, آپ دنیا کی جو مرضی انڈسٹری لے لیں. میں کسی پہ نہیں وہ کرتا, لیکن لنک اس لیے کر رہا ہوں اس کو اس کے ساتھ کیونکہ سوال کی نوعیت ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں. تو ٹیکسٹائل کیا کر رہی ہے, ایک ٹیکسٹائل 1000 لوگوں کو روزگار دے رہی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا سا ایک آپ یونٹ بھی لگائیں نا 10 مشینوں کا, تو اس کے لیے آپ کو 15 بندے آپ کو رکھنے پڑیں گے. کوئی کٹنگ پہ لگا ہوا ہے, کوئی نیٹنگ پہ لگا ہوا ہے, کوئی سوئنگ کر رہا ہے. تو مختلف آپ کی نا ایک زیادہ بڑی سپلائی چین جڑتی ہے بنسبت ایک جو ہے نا آپ نے فصل اگا لی ہے. نہ صرف وہ جو انڈسٹری ہے وہ صرف ان لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں, بلکہ بیک اینڈ پہ جو سپلائی چین انڈسٹری کے اس کو بھی مینیج کر رہی ہے, یعنی کہ کسان کو بھی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ والیوم کہاں پہ بڑا ہو رہا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کتنے ہیں. 70% پاپولیشن کی بات ٹھیک ہے, 70 نہیں 80% بھی لوگ پاکستان میں شاید زراعت کے محکمے سے منسلک ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ریونیو ہے ملک کا وہ کہاں اکٹھا ہو رہا ہے زیادہ, وہ کس سورس آف انکم سے اکٹھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انڈسٹری ہے, وہ ریونیو تو اکٹھا کر ہی رہی ہے. ٹیکس, اب آپ کو پتا ہے ایگریکلچر کیا ٹیکس دے رہی ہے, کچھ بھی نہیں دے رہی. آپ ایک فیکٹری پہ ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ 50 امپلائی کام کر رہے ہیں, وہ لاکھوں طرح کے ٹیکس دے رہے ہوں. ٹھیک ہے, ایگریکلچر کی لینڈ کے اوپر ڈائریکٹلی کوئی ٹیکس نہیں, ہاں انڈائریکٹلی ٹیکسز ہیں, کھاد وغیرہ کے اوپر ہیں, ایکسپائزڈ چیزوں کے اوپر
है, बट डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं, जमीनों पे भी टैक्स है। इतना नहीं है ना शायद, जितना फैक्ट्रियों के ऊपर ये भरमार है टैक्सेस की, ये टैक्स वो टैक्स, इवन कि हमारे एम्प्लॉइज की टैक्सेस भी कटते हैं। मतलब एक अगर गवर्नमेंट कमा रही है, फैक्ट्री से तो टैक्स ले ही रही है, आपको पता नहीं इस इदारे में आप काम कर रहे हैं, 22 अरब रुपया सालाना टैक्स दे रही है Exactly. पाकिस्तान को। 22 अरब इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है, सिर्फ 4 या 5 फैक्ट्री हैं। अच्छा, रोजगार के हवाले से देख लें आप, कितने ज्यादा लोगों का, हजारों लाखों लोगों का रोजगार है जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब मुल्क की इकोनॉमी किससे चल रही है? फैक्ट्री से चल रही है। अच्छा चलें अब इसे ग्लोबल लेवल पे ले लें। 1800 सदी से पहले दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। जैसे लोगों पेन बनाई, पेन से आगे रेवोल्यूशन आई, उसके बाद दुनिया में टेक्नोलॉजी ने अपना सफ़र तय करना शुरू किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 1800 में जो आई, और उसमें फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था। उसमें फिर राइट ब्रदर्स आ गए, उन्होंने कुछ इजादात की, फिर मुख्तलिफ साइंसदान आ गए, उन्होंने कुछ इजादात की, तो एक टेक्नोलॉजी में एक जो है ना इंसान है ना वो पीक लेना शुरू किया, और उसकी वजह से जो इतना बड़ा सफ़ेयर है उसने वो कवर करना शुरू किया। तो मतलब मेरा नहीं ख्याल है कोई मैच है। एग्रीकल्चर ठीक है, एग्रीकल्चर की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन ये है कि अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो इंडस्ट्री ने दुनिया का बड़ा वॉल्यूम कवर किया है। आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हैं, दुनिया से आती है, दुनिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आई पाकिस्तान में कभी भी, और ना कभी आ सकती है। आप मैंने जनाब R&D पे तो शायद वो कोई 2-4 लाख डॉलर दे दें, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन आप जब बात करेंगे ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को लेकर आएंगे पाकिस्तान में, तो उससे क्या होगा, उससे एक रेवोल्यूशन आएगी पूरे मुल्क में। और पाकिस्तान में तो 80-85% लोगों का रोजगार ही आप बताएं इससे फैक्ट्रियों से जुड़ा पड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई मैच है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का। एग्रीकल्चर की वैल्यू है, बट मजे की बात है कि एग्रीकल्चर की वैल्यू भी फैक्ट्री की वजह से। अब राइस बना रहे हैं, अब राइस आपको पता है, राइस उठ के सीधा लोगों के हाथों में चले जाते हैं, वहां से उनके राइस मिल जाएंगे। अगर लोग गंदम लगाएंगे तो गंदम उठ के फ्लोर मिलों में जाएगी, अगर कपास लगाएंगे तो कपास उठ के उधर जाएगी। अच्छा, अगर लोगों ने ये बेचारों ने सब्जियां भी उगाई नहीं है तो इसकी वैल्यू उस वक्त तक नहीं है जब तक कि ये फैक्ट्री में नहीं जाएगी। आपको पता है जो चीज फैक्ट्री में चली जाती है वो फिर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो वो भी फैक्ट्री के थ्रू हो रही है। तो कहने का मकसद ये है यार, मतलब इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का ना कोई मैच नहीं है, देयर इज नो मैच, ठीक है। एक मुलाजिम आप रखते हैं एक फैक्ट्री में, यू आर डूइंग अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेक्टर, यू नो दैट वेरी वेल कि यहाँ पे लोगों की तनख्वाह 6-7 मिलियन भी होगी, ऐसे ही है, नो डाउट। और इस तरह के पाकिस्तान में कई और सेक्टर्स भी हैं जिनमें इतनी हाई सैलरीज के लोग हैं, 7-7, 8-8 मिलियन लोग ले रहे हैं। क्या पॉसिबल है आपके पास चाहे 50 मुरब्बे ज़मीन क्यों ना हो, आपको ठीक है मैं 70 लाख का मुलाजिम रखता हूँ, मैं 70 लाख तो उसकी शायद इनकम ना हो, पॉइंट समझिए। उस 70 लाख को मैनेज, उस देखो आप ये देखो कि उस वॉल्यूम को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं ना, आप ये देखो कि ज्यादा लोगों का रोजगार कहाँ जुड़ा है और ज्यादा गवर्नमेंट को कहाँ फायदा। लेकिन ये तो इंडस्ट्री काफी गुफ्तगू ये कर चुके हैं। पहली बात है सारा काम उल्टा कर दिया, कहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं होगी तो ज़राअत कैसे चलेगी। भाई अगर कपास आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? किसान आपको चावल धान नहीं देगा तो आपके शेलर कैसे चलेंगे? किसान आपको गन्ना नहीं देगा तो आपकी शुगर मिल कैसे चलेगी? मैं देखे, एक मिनट देखे। और उसके बाद जो गंदम है वो हर बंदे की ज़रूरत है, यानी हर इंसान खाता है, तो गंदम अगर नहीं होगी तो मुल्क तो भूखा मर जाएगा। ज़राअत जो है, एक मिनट ठहरे, आपने बड़ी तसल्ली से बात की है, मुझे ज़रा करने दें। तो दूसरी बात ये है ना, वो जो मुलाजिम है ना वो गिने चुने हैं। जब आपकी 70% आबादी का तल्लुक ज़राअत से है तो वो ज़्यादा लोगों को वो फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरी बात है इंडस्ट्री के लिए आपको बड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं कोई यूनिट लगाने के लिए। ये तो 5-5, 10-10 एकड़ के जो किसान है वो थोड़े पैसों से ज़राअत कर लेते हैं, यानी अपनी खेती बाड़ी कर लेते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में जाती है तो काम की बनती है, भाई मुझे चावल बताएं, वो छाड़ों पे ले जाएं और चावल में जनाब निकलवा के खाएं, उस पर क्या ज़रूरत है शेलर में ले जाने की? अच्छा, वो लोग कर रहे थे गंदम को ले जाएं, वो आटे वाली चक्की पे पिसवा के खाएं, जरूरी उस मिल तक नहीं, यानी वो तो मिल वाला सेठ कमा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क की जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के जैसे रकबा है, पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है, इसमें यदि ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, अगर इधर ज़राअत नहीं करेगी तो इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी। अब आप बाहर से गंदम भी दरामद करें, अपना गंदम भी बाहर से ले, गन्ना भी बाहर से ले, उसके बाद आप चावल भी बाहर से ले, आप प्याज भी बाहर से ले, आप टमाटर भी बाहर से ले, ये क्या क्या आप बाहर से लेंगे? अगर आपके मुल्क में पैदा हो रहा है तो महंगाई कम होगी, यानी मुल्क की जो पैदावार होती है उससे महंगाई कम होती है। बाहर से आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। जब गरीब लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गरीबों का तो भट्ठा बैठ जाएगा। कोई मुल्क खुशहाल तब होता है जब कीमतें इतदाल पे हों, चीज़ों की कीमतें कम हों, वो मकामी तौर पे उनको कीमतें मिले,
तब उस मुल्क का काम बनता है। ये नहीं कि हर चीज बाहर से मंगा लो, बाहर से क्या क्या मंगवाएंगे, क्या क्या चलता है, मतलब है यानी दूसरा ये मुल्क ज़रई मुल्क है। तीसरा मुझे आप बताएं, एक शहर में कितने बंदे हैं जो सारे बंदे मिले लगा सकते हैं? पिंड में सारे बंदे खेती बाड़ी कर सकते हैं, 4-4, 5-5, 10-10 एकड़ के जमींदार कर लेते हैं, बड़े भी कर लेते हैं। मिल चंद बंदे लगाएंगे, मिल भी जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ मिलों का भी जो है ना इन्हिसार, ये दारो मदार उनका ज़राअत पे। अगर ज़राअत नहीं होगी तो मिलें कहाँ से चलेंगी? अगर इधर मुझे ये बताएं, इधर लाइफ स्टॉक खत्म हो जाए, वो ज़राअत से जुड़ा लाइफ स्टॉक खत्म हो जाए, तो मुझे बताएं कि आप लोगों को दूध कहाँ से पूरा करेंगे, उनके खाने के लिए गोश्त कहाँ से पूरा करेंगे, ये कहाँ से? उसके बाद ये भेड़ों की जो ऊन है, ये आपकी ये जनाब जो गर्म स्वेटरें शालें ये मतलब चलते हैं, वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे? यानी ये सारा बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ये जानवरों को जो चमड़ा है, इससे कितनी चीज़ें बनती हैं, यानी कि हज़ारों चीज़ें बनती हैं। ये ज़रूरी नहीं एक मिल का फायदा ही नहीं है जब तक ज़राअत तरक्की नहीं करेगी। आपका किसान खुशहाल होगा, वो आपको सस्ता गन्ना देगा, यानी कि ज़राअत तरक्की करेगी तब आपकी मिल चलेगी, उसकी कीमत एतदाल में, फिर किसान भी फायदे में होगा और वो भी फायदे में होगा। और ये जो कह रहे हैं ना 10-10 मिलियन तनख्वाहें, तो वो गिने चुने लोगों की है। ये नहीं है कि एक शहर में 10,000 बंदा रहता है तो वो 1000 बंदा 10 मिलियन ले रहा है। वो भाई वहाँ 30,000 का भी मुलाजिम है, 28,000 का भी मुलाजिम है। मुझे ये बताएं, आप एक रेडी फ्रूट की लगा लें तो वो बंदा 1.5 लाख तो महाना वो कमा जाता है, फिर कहाँ गई इंडस्ट्री आपकी? ये बातें नहीं है। इंडस्ट्री भी ज़रूरी है, यानी रेवेन्यू भी बनता है, सारा कुछ बनता है, लेकिन इंडस्ट्री की अहमियत अफादियत जो उससे तब सही मानों में फ़ायदा उठाया जा सकता है जब आपकी ज़राअत, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क हैं। ज़रई मुल्क में अगर ज़राअत में तरक्की नहीं करेगा तो वो कैसे तरक्की करेगा? वो भाई जब आपकी 100 में से 70 आदमी आपके ज़राअत कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल नहीं बदलेगा तो मुल्क का कैसे बदलेगा? मुझे 30%, बाकी 30% भी सारे उससे नहीं वाबस्ता। जो 30% है ना वो इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं है, बाकी वो बचते हैं, उसमें कुछ परसेंट बनता है, तो वो बाकी लोग क्या करेंगे? दूसरा काट पड़ जाता है, अगर गिदाई मतलब एक किला तो काट पड़ जाता है गिदा, और लोगों में बड़ी मतलब ये वो कैसे 24 एकड़ जमीन छोड़ के इधर आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है? इधर क्या कर रहे हैं शायद आप 24 एकड़ की भी काश्त करते हैं, वहाँ करते हैं, एक मुलाजिम रखा है, तो फिर वो मुलाजिम की जगह खुद चले जाए। देखिए खुद भी चला जाता, जो काम सवाल है ना, मेरी बात सुने, हमारे लिए कुछ मेरी बात सुने, ये ठीक है मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ये सारा कुछ है, लेकिन मैं कहूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं ज़राअत की अफादियत से हट जाऊँ। मैं आप अगर मुझे कंपनी फारिग करती है ना, घर भेज देती है, तो मेरा चूल्हा फिर भी ठंडा नहीं होगा, मुझे ज़राअत का आसरा मेरा चलता रहेगा। यानी अगर जनाब ज़राअत खत्म हो जाएगी तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी। मेरी बात मैं बताता हूँ, मैंने कहीं कहा है कि ज़राअत को नहीं, आप कहते हैं कि वो मैंने कहा शायद आप टॉपिक चल रहे हैं ना, सवाल ये नहीं है, वो दोस्त जिगर मेरी बात सुन लेना भाई। अरे सुन मेरे दोस्त, सवाल उसका ये है हम दोनों से कि क्या ज़राअत मुल्क की मईशत में ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही है या इंडस्ट्री? वही मैं कह रहा हूँ, मैंने ज़राअत की अहमियत से इनकार किया। आप तो कहते हैं कि ज़राअत है ही नहीं, जब मेरे दोस्त कहने का मकसद है सुन लेना। अरे नहीं मेरी बात सुन, ये देखिए बात पता क्या है दोस्त, बात ये है हमारी आपस की कि दोनों की अहमियत है, ठीक है? 10 नंबर है आपके पास, आपने इंडस्ट्री को कितने नंबर देने हैं और एग्रीकल्चर को देने हैं? क्यों हसन? ऐसी बात है ना, बिल्कुल। आप कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री के 10 नंबर हैं और ज़राअत के 0 हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 नंबर कम से कम फैक्ट्री के हैं और 3 नंबर ज़राअत के हैं। ऐसे नहीं, मैं इस बात को नहीं, इस बात पे बहस करेंगे। ये मैंने नहीं कहा कि ज़राअत को फारिग कर दूं, मैं एक चीज के अहमियत काम करते तो वही बात है। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ, या इधर बिजली का बुरान पैदा होता है तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है, आपको वो खड़े खड़े सेठ निकाल देता है, वो कहता है भागो घर, कोई जॉब नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये आप जो बाइकआउट का सिलसिला चला है फ़लस्तीन वाले मसले से, तो कितनी प्रोडक्ट रुकी है, और जनाब वो सारा ज़राअत ऐसी चीज़ है, अगर वो कर रहे हैं तो आपका चूल्हा ठंडा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, 3 नंबर वाली बात नहीं, 3 नंबर वाली बात नहीं है, ये 3 नंबर है 10 में। मुझे ये बताएं, ये मक्की अगर किसान न दे तो ये जो आपकी ये चल रही है, ये कहाँ से, ये कुकिंग ऑयल कहाँ से बना है? ये अगर तोरिया में किसान दे, यार मकई क्या रेट होगा किलो के हिसाब से? मैं 1.5 या 2 रुपए किलो लेता होगा फैक्ट्री, फर्ज कर लो, और वो जब मार्केट में निकलता है तो वो 350 रुपए किलो में निकलता है। अब वो जो 300 रुपए या 349 रुपए का मार्जिन फैक्ट्री में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है, वो एम्प्लॉइज की जेब में भी जा रहा है, और नहीं और कहाँ जा रहा है? सेठ के पास। मैं बताता हूँ, मैं किसान अगर खुशहाल होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा।
किसान को अगर कुछ नहीं मिलेगा, सेठ जेब में मार के ये तो सारी मल्टी नेशनल कंपनी इधर आई हुई है, ये तो बाहर के लोग पैसा ले जाएंगे। ओ भाई किसान को आप खुशहाल करोगे, हमारा मुल्क का बंदा तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। आप कहते हैं कि मल्टी नेशनल कंपनियां तरक्की करें तो मुल्क की तरक्की, मुल्क की इसमें क्या तरक्की, पैसे तो वो कमा के ले जाएंगे। यही तो शायद मेरी बात इसमें है एक मिनट किसान की बेहतरी के इकदामात होने चाहिए। किसान अरे किसान को सारा कुछ किसान के मुंह में घुसा दे, अभी तू खा ले। किसान कर रहा है सारा कुछ, तो किसान कर रहा है। अब यार मैं आपको बताता हूँ, अब एक किसान है जनाब, उसने 4 किले सब्ज चारा काश्त की हुआ है, 20 भैंसें उसने रखी हुई हैं, सारा दिन वो मेहनत करता है, उनको सब चारा डालता है, जब शाम को वो दूध निकालता है, वो दूध निकाल के वो देता है 100 रुपए का लीटर, इतनी मेहनत करके। और एक साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे आता है बंदा, वो उसे ड्रमों में डालता है, उसमें 4 ड्रम पानी के डालता है और अगले चौक पे वही देता है 200 रुपए का किलो, तो वो कमा गया। मैं कह रहा हूँ कि किसान को अगर खुशहाल करे, ऐसे इकदाम करे, मैं किसान खुशहाल हो, जेब में पैसे जाए तब काम बनता है, ये मुल्क तब तरक्की किसान नहीं तो नहीं कर सकता। अरे किसान की बदहाली की बात नहीं मैं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसानों से जमीन तो यही है ना, अगर चाइना वालों मैं कहता हूँ 70% आबादी जब ज़राअत से वाबस्ता है तो 70% लोगों को ये बेहतर करेंगे तो 70% लोग बेहतर होंगे ना। ज़राअत को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन उनका सवाल क्या है? मेरा शाहजी मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा अहम किरदार कौन अदा कर रहा है, इंडस्ट्री या ज़राअत? ज़राअत का मुझे बताया, मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर गन्ना नहीं होगा तो शुगर मिल कैसे चलाएंगे, ये गन्ना कहाँ से? अरे भाई फिर शादी की वही बात, गन्ना अपने कितने रुपए किलो, क्या क्या मानना है? तो यार अरे यार गन्ना अगर नहीं होगा तो ये तो ये गन्ने रुपए का क्या, गन्ने का क्या रेट होगा मान का, मुझे तो नहीं पता। No idea, no idea। जब आपको पता ही नहीं होगा, पूछ रहा हूँ ना, मुझे आगे चीनी का रेट तो पता है ना, आगे बताएं। वो चीजें का रेट यही है ना, चीज यही मैं कहता हूँ कि वो मखसूस तबका खा रहा है। भाई मुल्क को सीधी सी बात है, एक रॉ मटेरियल है, एक सीधी सी बात है। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कैसे चलेगा मुझे तो यार अहमियत की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदे, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल, तो अहमियत तो है, वो जो फिनिश इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फिर अहमियत नहीं है। वो जो फिनिश गुड्स में चीज बन रही है आपके पास, उसके दरमियान का जो प्रोसेस है वो अहम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात सुने कि ज्यादा लोगों का रोजगार किससे जुड़ा है, मुल्क की मईशत किससे जुड़ी है, बात सुने, मुल्क ज़राअत से जुड़ी है। अरे यार कराची में कौन सी ज़राअत होती है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो मुझे कहे बाकी ज़राअत काम करने, कराची से मुल्क चला के दिखाएं मुझे। रेवेन्यू सबसे ज्यादा सीधे से इकट्ठा हो रहा है कराची में, क्या बात बाकी नहीं, ज़राअत के अलावा नहीं हो सकता। और ये ताजिर सारे के सारे रेवेन्यू कुछ नहीं है ताजिर भाई ज़राअत में कोई नहीं है, ये जो कि किसानों से चलें जी आप यार 1-1.5 रुपए ठेका देता है किसान की, पता नहीं 15-20 रुपए पर एकड़ का कहाँ ठेका देता है? ये गवर्नमेंट को टैक्स जो देता है, ये इतना टैक्स है, एक फैक्ट्री का टैक्स उठा के देखें कितना है। फैक्ट्री का काम है, ज़राअत के साथ आपकी ज़राअत क्यों नहीं तरक्की करती, पता है आपको उसकी वजह क्या है? क्योंकि चंद लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि इंतहाई पावरफुल है ज़राअत में, ठीक है, उनको पता है कि हमारी मोनोपोली अगर टूटी, हमारी मोनोपोली नहीं ये बात तो ठीक है, वो नीचे वाले किसान का क्या फायदा? आज पाकिस्तान में किसान नीचे से तरक्की क्यों? इंडस्ट्री में मेरी बात सुने, फैक्ट्री में मैं आपको हजारों मिसाल ऐसे दे सकता हूँ जो कि बंदा नीचे से उठा है और वो ऊपर चला गया, ठीक है। मुझे ज़राअत में कुछ गिनती के 50 बंदे बता दें जो बेचारे जिनके पास कोई जमीन नहीं थी और आज उन्होंने सिर्फ ज़राअत में तरक्की की है। मैं दिखाता हूँ ना, हमारे यहाँ ना जिसका एक एकड़ में नहीं था वो मुजारे आते हैं और 4-4 मुरब्बे के वो मालिक बन जाते हैं। आप कैसे कहते हैं भाई? ज़राअत वो है ना, इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है। ज़राअत के अलावा को हाँ ये अलमिया है कि ज़राअत की ना तरक्की पे गवर्नमेंट ने, अब इंडिया में देखे, इंडिया में जनाब अब हमारे क्या प्याज इंडिया से आ रहे हैं, हर चीज़ इंडिया से आ रही है, हम उधर टमाटर ईरान से आ रहे हैं, उधर क्या है, किसानों को बिजली फ्री है, किसानों को जनाब खाद गवर्नमेंट देती है, सारी फैसिलिटी देती है, नहरी निज़ाम, हालांकि हमारा बरसगीर का जो नहरी निज़ाम था ये तो सवाल है ही नहीं कि किसानों भाई किसानों की ये मैं कहता हूँ ज़राअत की अहमियत है। ले जी चले जी इस टॉपिक को यहाँ एंड करते हैं। ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक दोनों के व्यूज़ हमारी ऑडियंस ने देखनी है, तो लेट्स देम डिसाइड कि किसके पॉइंट जो है वो कितने वैलिड है। ये ऑडियंस से ये भी है कि भाई सवाल सुने शुरू में जो हसन ने किया था उसकी बुनियाद पे वैल्यूएट करें, ठीक है, ये नहीं करना कि बिल्कुल शायद यार वो इधर उधर फिरते रहते हैं। शुक्र है कि पहली मिसाल है ज़राअत में जो शाहजी ने कोई हिस्ट्री की मिसाल नहीं दे दी, वरना तो शाहजी कोई ना ऐसा बात ले आते वो बंदा बात ही नहीं कर सकता। सब लोग जब ज़राअत में बसता है। चले जी ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।